Hello guys, everyone is fine. So today I have written something in the board now, that is tension element. So what I am thinking that इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ पढ़ाता रहूँगा, साथ ही साथ हम लोग एक नया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम पार्ट 1, दैट इज टेंशन एलिमेंट, ऑल्सो वी विल डिस्कस दिस यूनिट. So basically you all know that we have 118 element in a periodic table. We have 118 एलिमेंट. ठीक है. सो कितना एलिमेंट है हम लोग का पीरियोडिक टेबल में? अराउंड 118 एलिमेंट. ठीक है. येट मोर टू डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स. सो जनरली अभी तक हम लोगों को जो लास्ट एलिमेंट है 118, वो क्या है हम लोग का एलिमेंट? दैट इज द सिंबल इज OG. Okay, so generally for that transition element, that is particularly one you can say group. So basically you all know, you have already studied in class 11 that group 1 and group 2 and group 13 and group 14 you have studied. But now in class 12 you have to study for group 15 to group 18, that is your P block element. Like this way, there is also a particular group you can say in a periodic table, which is a class of transition element. So it has been seen that group number 3 to 12. So group number 3 to 12 is considered as transition element. तो उसमें ग्रुप 3 से ग्रुप 12 का जितना भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, अराउंड 40 एलिमेंट. सो 40 एलिमेंट्स इट कंप्राइजेस. सो इन अ सब लेवल्स. सो पर्टिकुलरली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्रुप 3 to 12 total 40 elements, okay, that are called as transition element, or you can simply call the transition element is a D block element. It's also called as D block element. दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को ही बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने और एक चीज देखा कि इट हैज 40 एलिमेंट इन द पर्टिकुलर ग्रुप, इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप 3 to 12. तो जनरली जैसे हम लोग ग्रुप 1 पढ़े थे इन क्लास 11. सो ग्रुप 1 में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ग्रुप 1 जनरली कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. ऑल्सो सिमिलरली ग्रुप 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. ग्रुप 13 से ग्रुप 18 ऑल कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट और वाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट? ओके, you already know these definitions since you have studied. But for D block element also we have one particular definitions will be there. So why they are called D block element? That is the main question, that why this group 3 to 12, that means why this 40 element are called as transition element, or you can simply tell that why they are called D block element. So for that particular definition you have to know little bit about your energy filling order. That means 1s 2s, then your 1s 2s to p, 1s 2s, then your 1s 2s to p, 3s 3b 3d 4d 4s 4p. So like this way, now how the electron is filled up in accordance of their energy, that is governed by above principle. Again it is coming from your क्लास 11. सो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, आज जो लिटिल बिट टच करेंगे इस चैप्टर को. आज हम लोग का पहला दिन है. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई दिस 40 एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हाई दिस 40 एलिमेंट आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. Okay, so why these are called D block elements or why they are called transition element, we have to study, we have to see. And also there will be a vast topic, you can say that this is a vast chapter, you can say.
lots of knowledge you can earn from this chapter. That is the main thing, because यहाँ पे basics with the huge concept is provided in your NCERT. So यहाँ पे हम लोग उस चीज को निकालेंगे कि क्या क्या चीज को पढ़ना है. Just the concept I will discuss with you. So यहाँ पे सिंपल बात बोला है कि why this called our D block elements. So generally in case of group 3 to 12, अगर हम लोग group 3 से 12 बात करते हैं तो जनरली उसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं. तो अभी मुझे क्या सब एलिमेंट मुझे सीखना है या नहीं? हाँ, फॉर दैट फॉर योर एग्जाम पर्पस यू हैव टू लर्न each and every element from the D block element, because it will be good for you. Okay, if you learned it, then it will be good for you for your exam purpose. Okay, so group 3 to 12 are considered as transition element. Now the question is that क्यों ये लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है? मैं बार बार पूछ रहा हूं यहाँ पे, तो क्यों हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज if you recall the definition of p block element, if you recall the definition of s block element, so what they are telling, that what the definitions from s block and p block is telling us, that the element in which the last electron enters in any one of the s orbitals, in the s orbitals or any one of the p orbitals, then they are will be called as s block element, or if it is coming in the p orbital, then it will be called as p block element. So that is the definition of s block and p block. What about the d block? So d block element is also similar definitions it will give us. That is the element in which the last electron enter in any one of the d orbital, that will be called as d block element. Now here the main thing is that you have to see how many d orbitals we have. If you are considering for the s orbital, we all know that s orbital has only one orbital, that is एक घर बोल सकते हो, एक स्क्वायर बॉक्स बोल सकते हो. ठीक है. अगर p ऑर्बिटल की बात करेंगे, so it has 3 square boxes. Okay, it is, I'm just telling you the square boxes, but it is orbitals. So orbitals means px, py and pz. ये तो हम लोग ने पढ़ा था ना. Then अगर ये d ऑर्बिटल होते हैं तो कितना घर होगा? इट विल बी अराउंड 5 घर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स. तो पहला ऑर्बिटल्स होता है dxy, इसके बाद dyz, dzx, देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, देन dz स्क्वायर. ये तो था dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. So these are the d orbitals you can say. Similarly, if you go for f orbitals, then what are the f orbitals? So generally it has 7 orbitals, like 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे देख सकते हो how many you can say how many orbitals here. So यहाँ पे हम लोग f में 7 orbitals होते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो एक अलग सीरीज में आते हैं, that is called lanthanide and actinide सीरीज, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट अभी हम लोग को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, हम लोग डी ब्लॉक के आगे हम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट है, वहां पे हम लोग ने पी ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे. बट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक भी पढ़ेंगे. तो डी ब्लॉक में क्या होंगे? ये ऑर्बिटल तुमको याद रखना है. सो जनरली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी डी ऑर्बिटल में आ रहा है, सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्या है? ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है. तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करना चाहता हूँ, आई एम रबिंग द एफ ऑर्बिटल बिकॉज वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे आज, सॉरी डी ऑर्बिटल की बात करेंगे. तो डी ऑर्बिटल में कितना होता है ऑर्बिटल्स? दैट इज 5 होता है ना, 5 ऑर्बिटल्स. तो अगर कोई भी अगर एलिमेंट है, सपोज ए एलिमेंट है, मैं पार्टिकुलर नाम नहीं लिख रहा हूं, जब हम लोग पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में जाएंगे तब हम लोग उस चीज का बात करेंगे. तो यहाँ पे सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका एंटरिंग हो रहा है एक डी ऑर्बिटल में, हो सकता है ना, क्या बड़ा बात है, हो सकता है, हो गई. अगर ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही भाई.
वैकेंट नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सपोज देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन्स आया है डी ऑर्बिटल में, मतलब ये क्या एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। अनडाउटेडली इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सपोज 2 electron is there, then it's also a d block element. 3 electron is there, it is also again a d block element. 4, 5, all are, if the 5 electron is there in this d orbital, then also it is known as d block element. Suppose अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात है, अगर ये d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तब क्या होगा, तब कंडीशन अराइज होंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज पॉसिबल है या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस पॉसिबल है नहीं है, तो यहां पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट में कैटेगराइज नहीं कर सकते। लाइक आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्जाम्पल फॉर कॉपर। अच्छा, इसके आगे तुम लोग थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूं अपभाव प्रिंसिपल के ऊपर। अपभाव प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को तुम लोग ने क्लास 11 में स्टडी किया था, अगर याद नहीं है तो अभी देख लो। सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज गवर्न बाय व्हाट, इट इज गवर्न बाय n+l रूल। जैसे तुम लोग ने पोटेशियम और कैल्शियम का बारे में तो जानते ही हो, दिस शोज एबनॉर्मल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पोटेशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20 होते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहता हूं, तो मैं एक जो हम लोग क्लास 9-10 में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज KLMN शेल ना, तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए। सो 2881 लिखते हैं ना, और इसको लिखते हैं हम लोग 2882। बट प्रीवियसली अगर हम लोग इसका प्रीवियस एलिमेंट को देखते हैं, दैट इज व्हाट, पोटेशियम के आगे हम लोग का क्या है, सो पोटेशियम के आगे हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसके आगे क्या है, आर्गन है। सो आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर, 18। तो इसका अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक वो देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इन टर्म्स ऑफ KLMN शेल, तो यहाँ पे क्या होगा 28, इसके बाद क्या होता है 8 होते हैं। इसके बाद और होते हैं नहीं होते, बिकॉज इट इज 18 ना। इसको काउंट करो, प्लस करो, यू विल गेट 18, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं KLM शेल में लिखता हूं, तो हम लोग जानते हैं कि इट इज गवर्न बाय 2n² रूल। और 2n² रूल हम लोग को क्या बताता है कि पहला नंबर शेल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर पे आओ, सेकंड नंबर शेल पे आओ, इट विल बी 8, सेकंड नंबर पे आओ तो क्या होंगे, दैट इज 18। तो कितना होना चाहिए था यहाँ पे 288, इसके बाद यहाँ पे 81 हुआ, बट यहाँ पे होना क्या चाहिए था 289 होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे 2810 होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा, ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं किया। बिकॉज सीधा सीधी बोल सकता हूं, it shows an abnormal behavior. Why? Because it jumps to the higher orbital. So यहाँ पे देखा गया कि पोटेशियम और कैल्शियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटरिंग हुआ, मतलब पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग हुआ वो KLM, इसके बाद किस शेल में एंटर किया, N शेल में जाके एंटर किया। अगर N शेल में नहीं करता, मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली हम लोग ने स्टडी भी किया, ग्रुप 1 का होता है वैलेंस, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। तो ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 ही होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। और ये डिसाइड करता है क्या, अगर +1 कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है मतलब +1 चार्ज है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सो यहाँ पे अगर 1 नहीं होता तो ये पोटेशियम आयन नहीं होते, यहाँ पे एक फंडा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 2882 है, मतलब ये डिसाइड कर रहा है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
लूज हो सकता है, मतलब कैल्शियम डाई पॉजिटिव बन सकता है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर सपोज मेरे पास पोटेशियम है 19, so how will you write in terms of electronic configuration? So it's very simple, that is called argon, then 1s2. If you don't want to write like this way, then it takes little bit time. So वो टाइम हम लोग क्यों देना चाहते हैं ना, क्यों देंगे हम लोग टाइम, ठीक है। एग्जामिनर तो चाहता ही है कि टाइम दो तुम, ताकि तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then it will be 6 plus 2 8, 10, then 12, then 18, then 4s1. सिमिलरली अगर तुम कैल्शियम में आओगे तो कितना होगा, सो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. इसके बाद कहा आना चाहिए था, अगर नेक्स्ट एलिमेंट आओगे स्कैंडियम, उसका होता है एटॉमिक नंबर 21। तो यहां पे क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अभी आएगा मेन बात। तो अभी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, मैंने 4s2 लिख दिया, ठीक है। बट अगर तुम इसको चेक करोगे, कैल्शियम एंड स्कैंडियम का अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने लिखा, दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। मतलब मुझे और एक इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना है, फिलअप करना है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, सो हम लोग जानते हैं कि 2 नंबर शेल, मतलब 2 नंबर ऑर्बिटल में 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। 1s में सिर्फ 1, मतलब पहला ऑर्बिटल में 1s एग्जिस्ट करता है, पहला ऑर्बिट में। सेकेंड नंबर ऑर्बिटल में सिर्फ 2s एंड 2p एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड नंबर में 3s करेंगे, 3p करेंगे, सिमिलरली 3d भी करते हैं। तो यहाँ पे एक 3d ऑर्बिटल भी आएंगे, और 3d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। बट यहां पे 3d और 4s में एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, कौन आगे फिलअप होगा। सो एज पर द n+l रूल, सो n+l रूल क्या बोलता है हम लोग को, अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है, अगर मेरे पास d ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां पे क्या ऑर्बिटल है मेरा, क्योंकि यहां पे 4s और 3d है मेरा ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं 3d को आगे लिखूंगा या 4s को बाद में लिखूंगा, लिखना तो चाहिए मुझे 3d को आगे लिखना चाहिए, इसके बाद ही तो 4s आएंगे ना। बट मैंने यहां पे 4s2 आगे लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है 3d ऑर्बिटल, क्योंकि तुम्हारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट इज एंटरिंग इन द d ऑर्बिटल। बट यहां पे केस अलग हो रहा है, क्यों ऐसा अलग होता है, लेट्स सी। सो यहां पे 4s है और एक में है 3d। तो n+l रूल में क्या होंगे जनरली, यहां पे n वैल्यू, यहां पे l वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज n+l। देख लो एक बार तो क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो यहां पे 4s मतलब n वैल्यू क्या होंगे 4, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होंगे। l वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0, 3d के लिए s l ऑर्बिटल क्या होंगे, l का वैल्यू क्या होता है जनरली, s में होते हैं 1, सॉरी s में होते 0, p में होते हैं 1 और d में होते हैं 2। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4 and 0, दैट इज 4 plus 0, that is the value will given 4, 3 plus 2 it will come 5। तो यहां पे इन टर्म्स ऑफ n+l, तो n+l में वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है, 3d का, और इसका 4s का कम आ रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तुमको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब छोटा से बड़ा। तो छोटा कौन हो रहा है, 4s, इसलिए 4s आगे आ रहा है। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर जा रहे हो तो 3d बाद में जा रहा है। सो व्हाट वी कैन से दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन द 3 ऑर्बिटल। मतलब यहां पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो भी d ब्लॉक का एलिमेंट आएंगे जनरली यहां पे ns2 रहेंगे, मतलब s ऑर्बिटल विल बी फुलफिल्ड। वहां पे s ऑर्बिटल का वैकेंट, मतलब यहाँ पे ns1, हाँ ns1 आ सकता है, वो एक अलग है। बट जनरली हम लोग ने फर्स्ट एलिमेंट में देखा कि यहाँ पे जो s ऑर्बिटल हो रहा है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो रहा है, बिकॉज s ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन है 2। तो यहाँ पे स्कैंडियम के लिए ns2 बन रहा है। ns2 मतलब n क्या डिटरमाइन कर रहा है कि ये आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर मैं स्कैंडियम का बात करूंगा तो स्कैंडियम का 4s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जनरली, ये 4 है ना, तो 4 मतलब 4th नंबर ऑर्बिटल। तो अगर मैं स्कैंडियम का स्ट्रक्चर, ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। सो इन n+1 मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो
तो एनर्जी किसका ज्यादा है, 3D का, तो इसलिए 3D को मैंने बाद में लिखा, इसके आगे मैंने क्या लिखा 4s, बट इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है स्कैंडियम का, दैट इज 4s ऑर्बिटल. नाउ द मेन कॉन्सेप्ट लाइज इन दिस फैक्ट दैट, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसका देखने में ऐसा होंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d and the last orbital that is called your 4s orbital. तो यहाँ पे 4s, तो इसको मैं रेड पेन से कर देता हूं, तुम लोग का और क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट. तो ये हो गया 4s, ये हो गया 3d 3s एंड 3p, देन यहाँ पे होंगे 2s एंड 2p, और ये वाला 1s. समझ में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कैंडियम. तो यहां पे देख सकते हो कि लास्ट जो ऑर्बिटल है, जो लास्ट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या है 4s ऑर्बिटल, इसके आगे है 3d एंड 3p एंड 3s, और इसके आगे है 2p 2s, एकदम इनर मोस्ट शेल है 1s बोल सकते हो. तो यही तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहाँ पे स्कैंडियम के लिए, ये स्कैंडियम का है, ठीक है, स्कैंडियम का मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे. तो यहाँ पे देख सकते हो कि सर, यहाँ पे तुम क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि अगर सर ऐसा है तो यहाँ पे ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स ना, दैट मीन्स एनीथिंग, एनी एलिमेंट, particularly this the outermost shell decides that how it can form the bonds, how many covalent bond it can form, how much electron it can lose. So basically it determines the number of valence electrons. So number of valence electron determines that how the bonding will be possible. That means which type of bonding will be possible, whether it forms a single bond, whether it forms a double bond. So generally it depends. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन भी लूज करेंगे, साथ ही साथ 3d जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. मतलब यहाँ पे हम लोग को स्कैंडियम +3 स्टेट में मिल सकते हैं, ठीक है. तो जनरली अगर 3d1 है, मतलब ना ये बोल सकते हो कि ना ये कंप्लीटली वैकेंट डी ऑर्बिटल, ना ये इनकम्प्लीटली, ना ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल. So just it has only one electron. So that will be considered as a d block element. Now the question is that the question may arise in a various way ना. तो यहाँ पे जनरली हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग d block element को in terms of energy भी हम लोग कर सकते. तो particularly अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखना चाहते हैं, so generally हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगे that will be n-1 d 1 to 10 ns 0,2. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि n-1 d 1 to 10 ns 0,2. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस चीज को. तो पर्टिकुलरली हम लोग क्यों यहाँ पे s, पर जनरली s 0 हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन्स द s ऑर्बिटल मे बी वैकेंट. सो ns 0 भी हो सकता है उस टाइम पे. सो अगर इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट गिव्स, if you write the oxidation state of this element, suppose of any particular d block element, तो यहाँ पे ns 0 भी हो सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 रह सकता है. सो जनरली यहाँ पे n-1 d 1 to 10 क्यों दिया मैंने, सिंपली स्कैंडियम का देख लो. स्कैंडियम का कितना होता है, आर्गन कितना होता है, आर्गन देन 4s2 that is 18 19 20 that is 3d1. ये है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ns 0 to 2 लिख रहे हैं और यहाँ पे n-1 कर रहे हैं d को. तो n-1 d को क्यों कर रहा है, बिकॉज ये जो 4s2 है ये आउटर मोस्ट शेल है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 4s2 मतलब, तो यहाँ पे 4 मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल, मतलब 4-1 d1 एंड ns मतलब ये हो गया आउटर मोस्ट शेल, मतलब 4s2. तो इससे मतलब 3d1 4s2 ये किसका है, ये स्कैंडियम का है. ठीक है गाइस, सो सॉरी फॉर दैट. तो यहां पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जनरली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज 4s ऑर्बिटल, और इट में भी 5s ऑर्बिटल, और इट में भी 6s ऑर्बिटल. तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से क्या करेंगे, एक -1 कर देंगे. तो हम लोग का पर्टिकुलरली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तुमको कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने देगा,
तुम आराम से इस फॉर्मूला से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम n-1d 1 to 10, बिकॉज मैक्सिमम 10 हो सकता है और जो मिनिमम होंगे ये 1 होंगे, 0 नहीं होंगे। और ns 0,2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है ns ऑर्बिटल, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे s ऑर्बिटल। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सो विल डिस्कस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और एक चीज याद रखना, मैं बोल देता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जनरली वी हैव सीन दैट ग्रुप 13 to 12. So group 13 to 12 are called as D block element or simply called transition element. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि it is subdivided into 4 classes, that is 3D classes, 4D classes, 5D tension series और simply you can say 6D. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम एंड एंड्स इन जिंक 21 से 30। देखो यहाँ पे 10 एलिमेंट है। देन इट्रियम, दैट इज इट्रियम का होता है 39, इट्रियम टू जिंक कैडमियम, सो कैडमियम एंड इट विल बी एटॉमिक नंबर विल बी अराउंड 48 years, जस्ट 10 ऐड करके जाना। इसके बाद 5D का होता है तुम्हारा लैंथानम, सो लैंथानम का होता है 57 एंड इट कंप्लीटेड एट वहाँ पे मार्करी, सो मार्करी का होता है जनरली 80। ठीक है, इसके बाद 6D का अगर देखोगे तो 6D स्टार्टेड फ्रॉम योर एक्टिनम, इट इज ए रेडियोएक्टिव, फुल्ली रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, सो एक्टिनम इट्स 89 and it completed at zinc, cadmium, mercury. Then it will be, I think, copernicium. So that will be the atomic number is copernicium is Cn, that is 112 most probably. Yes, it is 112 Cn. So this is the your D block element, that is 40 element total. अगर count करोगे तो you will get 40 elements. Clear guys? So we have divided the D block element in 4 classes, that is we called as transition series. So 3D transition series, 4D transition series, 5D transition series and 6D transition series. First of all we'll be on the 3D transition series. We'll discuss the properties, their preparations, and mostly you will see that the coinage metals like gold, then silver, then your you can say platinum. So these are very what to say, it's a very costliest element you can say. So generally it is again found in this particular group, that is particular D block element. So it is a very important chapter to study. You can get many concepts from this chapter. That is the main thing. Not only you will study the chemistry, but also you will get to know more about this chapter. ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए मैं इतना ही डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए, पढ़ते रहो। और मैं अभी कंटिन्यू डालता रहूँगा, क्लास 12 एंड 11 का साथ साथ चलता रहेगा। तो गाइस आज छोटा मोटा मैंने तुम लोगों के लिए मैंने कुछ ट्राई किया यहाँ पे नया एक चैप्टर। तो गाइस आई होप यू लाइक माई वीडियोज, यू लाइक माई कॉन्टेंट्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो and like and share this channel also. Thank you. And also I just started on Instagram, so I'll give you the link below. So if you want any information, then directly you can DM me. Okay, I'm there also. So guys, today is this much. Thank you.